I would now like to call upon stage Roshali Parekh to introduce Mr. Limesh Parekh. Good evening. My name is Vrishali Parekh. So let me start with a little story. When I was asked to give a speech about my father, I was excited. I was like, yes, I have known him all my life and this is going to be super easy. I'm going to do it. I started writing and then I was absolutely blanked out. I was like, how am I supposed to put 50 years of experience and amazing lifetime in a 5-minute speech? So I did the next best thing. I asked people around me, what would they talk if they had to talk about their father? They told me they didn't know, or maybe they are not able to put it in words. I was back to square one. The date was approaching and I really didn't have what to say. And that's when I realized that maybe this is what it is. A father-daughter relationship is something that cannot be labeled or not put into words and sentences. It's something that can only be understood. There are days when we think alike. There are days when we are just poles apart. There are days when we understand each other. Then there are other days when we just go with the phrase, "अरे भाई generation gap है." There are days when I crack silly jokes and he understands, and then there are other days when he cracks jokes. A थोड़ा formal introduction दे दूँ तो he was born on 6 January 1971 to Jyotsna Parekh and Narendra Parekh. He is head of family of 11. He is married to Chaya Parekh and blessed with a daughter, me. He started working at the age of 11 at a stationery shop. Later, he helped his father with accounts, and after 12th, he took up the course of chartered accountancy and did his articleship alongside. Wait for the twist. CA Inter was cleared. CA final classes were taken and completed, all ready and set for the final exams. And just a couple weeks before the final exams, he decides to switch his line from commerce to software engineering. He completed his software engineering from NIIT Mumbai. इससे एक dialogue याद आता है which he usually uses. He also used it in his book. सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं. Originally spoken by Badshah Khan in Khuda Gawah. From his first job at that stationery shop as a kid, working for his family, to charting his own path as a CEO of India's leading software company, he has reinvented himself with dignity, culture, and a lot of humor. He is Limesh Parekh, ladies and gentlemen. Once a CA dropout by choice, an avid bookworm, a music lover, an on and off guitar student, a yoga assistant instructor, an amazing father, a loving husband, a caring brother, and a proud son. Thank you so much. Thank you so much, Roshali, for the introduction. तो कहते हैं कि पढ़ने से आदमी भरते हैं, जो पढ़ते हैं वो भरते हैं, और जब छलक जाते हैं तब वो लिखते हैं. अब जिस शख्स को मैं इस स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ, उन्होंने बस अपने तजुर्बे के दम पे एक पूरी किताब लिखती है दोस्तों. With a very big round of applause, I present to you the man of the hour, Mr. Limesh Parekh, author of the book Cracking the CRM Code. Thank you very much. आज है ना एक बात पता चली मुझे कि जब भी व्यक्ति नर्वस होता है ना, और जो इफेक्ट दिखता है बॉडी के ऊपर कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस लंबी लंबी चलती है, या थोड़ा थोड़ा हल्का पसीना आता है ऐसी ठंडी हवा में भी. लेकिन दूसरी बात मालूम पड़ी कि जब भी व्यक्ति एक्साइटेड होता है ना तो भी ऐसे ही आसार दिखते हैं. तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आई एम एक्साइटेड एंड नॉट नर्वस. हाँ, तो जो सोचेंगे वो होगा ना, ये आइडिया है. So publishing a book, or this book getting published, is second most enchanting moment of my life. The first being father of these two lovely girls. हाँ, thank you. मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो काफी वक्त चला गया. लेकिन रिसेंटली मालूम पड़ा कि वक्त जाता नहीं है, वक्त
लाता है, तो वक्त एक्सपीरियंस लाता है, बहुत सारा अनुभव लाता है जो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। इस बुक में वो ही शेयर करने का प्रयास किया है। तो एक बात जो श्रेया ने कही कि जब ये व्यक्ति पढ़ता है ना तो भरता है, और जब बहुत भर जाता है तो छलकता है तो वो लिखता है। तो मैं पूरा भरा कि नहीं भरा वो नहीं मालूम है, लेकिन बट आई वुड लाइक ऑल्सो टू गो विद व्हाट वैन गॉग सेड, you have to experience something to express it properly. So I tried to express what I have been experiencing for last 16 years. अभी जो मुझे बात करनी है ना उसमें मैं आपको ये पूरा जो बुक है वो SME के बारे में, एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बुक। ये किताब कोड वर्ड आता है तो किसी को लगता है कि कोडिंग के बारे में, ऐसा नहीं है। दिस इज आउट एंड आउट द अदर साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी ये मुद्दे बोलने के लिए आई वुड लाइक टू शेयर 2 पॉइंट्स विथ यू, और उसमें से जो पहला पॉइंट है उसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, सुरेश और रमेश की स्टोरी। तो सुरेश और रमेश ये 2 कॉलेज के पास आउट है और सिमिलर डिग्री की है, सिमिलर बुद्धि है, सिमिलर एटीट्यूड है, और दोनों चलते हैं निकलते हैं जॉब लेने के लिए, और दोनों की ऐसी इच्छा है कि अपने को 25,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए, राइट। मेरे जैसे बहुत छोटे में खुश हो जाने वाले। तो सुरेश आ जाता है अपने जैसे किसी SME के यहाँ पे, जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि देख भाई तो सब अपना खुद का करके काम करने का, तो मेरे बेटे जैसा रहेगा, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम अच्छी तरह से मन लगा के काम करना। एंड देन समहाउ वी कन्विंस हिम कि यार 25,000 तू नहीं दे सकता, देख तू बेटे जैसा है तो समझ, घर का रिलेशन है, राइट। तो वी कन्विंस हिम टू वर्क फॉर 22,000। दूसरी तरफ रमेश जो है ना, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जहाँ पॉलिसी है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर मैकेनिज्म है, तो वो लोग उसको हायर करते हैं एंड दे हैव ए पॉलिसी, सो दे गिव हिम 40,000 रुपीज सैलरी। तो उनका जो कंसेप्ट है कि नया आएगा तो उसको ये सैलरी का स्ट्रक्चर देना है, फिर उसको ट्रेनिंग और इंडक्शन वो सब। अब जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में सुरेश आ गया तो हमने सुरेश को बिठा दिया किसी के बाजू में कि भाई वो काम करता रहेगा तो सीखता रहेगा धीरे धीरे। रमेश की कंपनी में ऐसा नहीं होता। रमेश की कंपनी में बकायदा उसका इंडक्शन प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस ढंग से सिखाए जाते हैं, उसको ढंग से बताया जाता है कि व्हाट इज हिज रोल, व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज हिज अकाउंटेबिलिटी। एक और पर्सपेक्टिव है ये दोनों चीजों का, और वो ये है कि जब भी हम सुरेश को सब अपने आप सीखने के लिए रखते हैं तो वट एवर वी, हम जिसको बोलते हैं ना, हम कितना सुरेश के पास से वसूल कर पाते हैं, या व्हाट इज द सुरेश कंट्रीब्यूटिंग टू कंपनी, ये CTC का अलग मतलब निकल सकता है, व्हाट इज द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग टू कंपनी। तो हम मान के चलते हैं कि हम सुरेश के पास से 20-22 हजार रुपए का ही कंट्रीब्यूशन निकाल पाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है ना, जैसा सुरेश को मन में आता है, जैसा समझ में आता है वैसा सुरेश कर रहा है। दूसरी तरफ रमेश की कंपनी में क्योंकि पूरा सिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे रमेश काम कर रहा है, तो रमेश का जो CTC है ना, कंट्रीब्यूशन टू कंपनी, दैट इज मच मोर देन व्हाट ही इज गेटिंग एज अ सैलरी। इट माइट बी 60, 65,000, 70,000 और समथिंग। अब शांति से सोच के देखना कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हम जितना सैलरी दे पाते हैं, MNC हमसे बहुत ज्यादा दे पाता है उसी व्यक्ति को, because they have a larger mechanism where they can fit this person, and then this person performs something which moves a much larger wheel and a much complex machinery। इसी स्टोरी का और एक पर्सपेक्टिव आता है कि सुरेश और रमेश अंदर क्या सोच रहे हैं। तो सुरेश क्या सोच रहा है कि देख भाई, अपना तो इच्छा था 25,000 का और यहाँ 22 मिल रहा है, ज्यादा चूचा करेगा ना तो मैं तो छोड़ दूँ, ठीक है। दूसरा ये भी सोच रहा है कि कहीं अच्छा मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा, वैसे भी मेरे एक्सपेक्टेशन से कम मिल रहा है। अच्छा, रमेश क्या सोच रहा है? रमेश भी वही चीज सोच रहा है कि देख भाई, अपना तो एक्सपेक्टेशन 25,000, यहाँ पे तो 40 मिल रहा है, जो बोलेगा वो चुपचाप करो, गिव योर बेस्ट। अब हम सबको ये डिसाइड करना है कि हमें सुरेश की कंपनी बनना है कि रमेश की कंपनी। I suppose most of us present here are entrepreneurs। तो हम सबकी इच्छा तो यही है कि हमें भी रमेश का ही कंपनी बनना है, लेकिन somehow कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है और हम हो नहीं पाता। And in today's time, most of the people think that if we
ब्रिंग इन द टेक्नोलॉजी, तो हम स्ट्रक्चर लेके आएंगे। हम ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चर आ जाए। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी विल एनेबल यू फॉर दैट स्ट्रक्चर, फॉर दैट कल्चर, बट टेक्नोलॉजी डज नॉट ब्रिंग दैट कल्चर। ये बुक शायद पूरा वही चीज को कैप्चर करने की कोशिश करती है। ये पूरी एसएमई स्टोरी का ना और एक पर्सपेक्टिव निकल के आता है। इफ वी कंसिडर इंडिया टू बी एन एसएमई कंट्री विच इट इज, और अगर हम ये सोचें कि एसएमई का क्या स्ट्रगल हो सकता है आने वाले कुछ 5 या 10 साल में, और हाउ डू वी फाइट दिस मल्टीनेशनल्स हु इवन हैव प्रीडेटरी पॉलिसीज एंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस, तो शायद ना चैलेंज ऐसा नहीं है कि कैपिटल का है या किसी और चीज का है। चैलेंज शायद इस बात का होता है कि हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। 100% श्योर बात है कि वी हैव इनफ स्किल टू फाइट लार्जर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। बात ये सोचना है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं, एंड डज टेक्नोलॉजी हेल्प और नॉट, और लेट अस कंसीडर वेदर टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स और नॉट। तो टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसका सबूत अपने को सब जगह पे मिलता है। सब्जी वाले के पास भी मिलता है। परसों मैंने सूरत में सोडा पिया था 15 रुपए का और जीपे से दिया था, तो सोडा वाले के पास रेकड़ी के ऊपर गूगल पे था। तो टेक्नोलॉजी तो वो भी यूज कर रहा था एंड हम भी यूज करते हैं। प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, और जो ये कुछ और प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने का प्रयास इसमें डिस्कस किया गया। What happens when people go for CRM or ERP and then they fail? जनरली हम एज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी ये हो भी सकता है, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। तो what I think personally is technology cannot be adopted in its isolation. हमें टेक्नोलॉजी का कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा उससे बेनिफिट को रिसीव करने के लिए। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छा सॉफ्टवेयर डाल दिया और टेक्नोलॉजी आ जाएगी या पूरा प्रोसेस और कल्चर बन जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे। वी हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मे बी रेडी फॉर द टेक्नोलॉजी। वो कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा कि विच इज रेडी फॉर द टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको इस बुक की कुछ खासियत बताता हूँ कि मैंने क्या सोच के लिखा है और व्हाट आई एक्सपेक्ट टू डिलीवर टू द रीडर। तो सबसे पहले ना एक तो ये है कि सीआरएम इस विषय पर जितनी भी बुक्स लिखी गई है वो सारे एंटरप्राइज के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। किसी ने एसएमई के पर्सपेक्टिव से बुक नहीं लिखा है। जितने लोगों ने भी बुक लिखा है ना आज से पहले, वो सारे बुक्स लिखे गए हैं हाउ डज द सीआरएम वर्क, वो सीआरएम की टेक्नोलॉजी के बारे में, सीआरएम के अलग अलग कैपेबिलिटीज के बारे में। और यही दूसरे भी सिनेरियो है कि एवरी सीआरएम वेंडर टेल्स यू व्हाट देयर सीआरएम कैन डू, बट नो वन टेल्स यू व्हाट यू हैव टू डू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू नो ना कि हमको क्या करना है। नहीं तो क्या होगा, हम लोग वो जिम में जाते हैं ना, ऐसा होता है कि जिम के सारे इक्विपमेंट्स के मैंने मैनुअल पढ़ लिए, लेकिन मुझे जो सुबह उठने में आलस होगा उसका क्या करना है, मुझे क्या खाना है नहीं खाना है, ये भी तो किसी ने बताना पड़ेगा ना कि हाउ डू आई यूज दैट टेक्नोलॉजी विच इज इन द जिम। तो ये बुक वो प्रयास करती है। इट इज नॉट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड, इट इज फ्रॉम द दैट साइड। तो आई थिंक इसके अंदर जो कंसेप्ट्स और आइडियाज डिस्कस किए हैं दैट विल आल्सो हेल्प इन द ईआरपी, नॉट ओनली इन सीआरएम। या कोई भी आपको टेक्नोलॉजी अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिप्लॉय करना है तो आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस बुक शुड हेल्प, इट विल डेफिनेटली हेल्प। तीसरा खास बात है इस बुक का, अब तक में जितने भी बुक्स सीआरएम पे लिखे गए, मेजॉरिटी बुक्स और वी कैन से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बुक्स हैव बीन रिटन बाय फॉरेनर्स। ये इंडियन ने इंडिया में रह के लिखा हो ऐसा पहला बुक। थैंक यू। आई एम ऑल्सो एज प्राउड एज दिस। आप सबको जितना अच्छा लगा ना उतना भी मुझे अच्छा लगा। दूसरा एक प्रयास ये किया गया है कि दिस बुक हैज टू बी सो सिंपल कि आप पूरा बुक पढ़ लें, आपको एक भी अक्षर के लिए डिक्शनरी लेने का जरूरत नहीं। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट ए लिटरेचर मास्टरपीस। मुझे ना कम्युनिकेट करना, ठीक है। जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा उसको वैल्यू मिलना चाहिए। मुझे कितना अंग्रेजी आता है ये दिखाने का प्रयास नहीं। थोड़ा ये बात करते हैं कि बुक
किसको काम आएगा। और उसके पहले मैं बता दूं कि बुक का ना स्ट्रक्चर क्या है, सो दैट व्हेन यू बाय इट यू हैव एन आइडिया कि व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट दिस बुक ट्राइज टू आंसर। सबसे पहले डिसाइडिंग टू बाय सीआरएम, मतलब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड बिलीव मी देयर आर मोर सिनेरियोज व्हेन नहीं लेना चाहिए, तो आपको वो भी बता देता है कि भाई खर्चा नहीं करना। दूसरा मुद्दा है actual buying of CRM. I have seen many customers struggle with the buying process. वो कुछ गलत ही चीज और गलत ही मापदंड पे चल रहे हैं, फिर गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो सेकंड चैप्टर इसके बारे में। थर्ड चैप्टर है, जो थर्ड टॉपिक है दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द CRM, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी के कल्चर से रेडी करोगे, तो वो कैसे करेंगे। चौथा चैप्टर है ना, जो जितने लोगों ने भी CRM से थोड़ा भी अनुभव किया होगा वो सब एग्री करेंगे, मेरे लोग यूज नहीं करते। तो चौथा चैप्टर इसके बारे में है कि हाउ टू मेक योर यूजर्स यूज CRM। मेजॉरिटी कंपनीज ये थर्ड चैप्टर तक आके अटक जाते हैं, चौथे चैप्टर में नहीं पहुंच सकते, मतलब चौथे लेवल पे नहीं पहुंचते, उनके यूजर्स अच्छी तरह से CRM नहीं यूज करते एंड देन दे पेरिनियली स्ट्रगल विद दैट। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रिकॉर्ड का एंट्री करने के लिए इंसेंटिव देते हैं, या ऐसे भी कंपनीज देखी है जो रिकॉर्ड का एंट्री नहीं करने पे पेनल्टी लगाती है, बट बोथ दिस थिंग्स डोंट वर्क। चौथा जो मुद्दा है ना वो ये है, और यहां से अटक नहीं जाना है। पांचवा मुद्दा है ना वो ग्रोथ के बारे में। सी, टेक्नोलॉजी कैन बी ए फोर्स मल्टीप्लायर, इट कैन बी जेन्युइनली ए फोर्स मल्टीप्लायर। अपनी जो बुद्धि है, क्षमता है, उसको टेक्नोलॉजी कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती है। So this book talks in the final section about the growth, how you can use technology for growth. अब बात करते हैं किसको किसको काम आएगा। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, जिसको CRM खरीदने का बाकी है या खरीद लिया है, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सबको काम आएगा। दूसरा, जिसको CRM बेचना है ना, उसको भी बहुत काम आएगा। जो CRM के या मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको भी काम आएगा, क्योंकि कॉलेज में CRM सिखाया जाता है, बट दैट इज देन वी आर टॉकिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। उधर क्या करना है ये भी तो समझना पड़ेगा, तो ये वहां पे काम आएगा। एंड बिफोर आई एंड दिस, मैं पर्सनल लेवल से कुछ ग्रेटिट्यूड वाली बात बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होता इफ मेरे साथ वो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। और जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि आई हैव 11 मेंबर फैमिली, तो सपोर्ट उतना ज़्यादा रहता है। दूसरा, बहुत मजबूत सपोर्ट मेरे टीम के तरफ से मिलता है, जिन्होंने मेरा ये पिछले 3 महीने में या 3.5 महीने में जो एब्सेंस रहा वो बर्दाश्त किया, और कहीं पे किसी भी कस्टमर की साइड से ऐसा कंप्लेंट नहीं आया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई खास भी रोल नहीं है। मेरे एक दोस्त बोलते हैं कि हर कंपनी में एक आदमी होना चाहिए जो मुफ्त की खाए, और अच्छा हो अगर वो सीनियर पोजीशन में। तो ऐसा है। सो इफ आई एम एब्सेंट, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होता है। तीसरा, मैंने जब ये बुक लिखने का चालू किया, और जैसे जिग्नेश भाई ने बताया ना, आजकल घोस्ट राइटर का बहुत जमाना है, सो आई वाज कॉन्टेक्टेड बाय मेनी पीपल, क्योंकि मैंने कैसा किया था, 6 तारीख को अनाउंस कर दिया था, 6 सितंबर को, कि आई एम राइटिंग ए बुक एंड इट विल बी पब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आई वाज ऑफर्ड कि घोस्ट राइटिंग कर देंगे। मैंने बोला नहीं, एक्सपीरियंस तो मुझे ही करना है लिखने का। सो देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मिस्टर विशाल कटारिया, जिन्होंने इसका प्रूफ रीडिंग किया था प्रोफेशनली, एंड ही इज ऑथर सिंस लास्ट 9 ईयर्स। उन्होंने बुक नहीं लिखी, लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखे। तो एनी वन ऑफ यू, इफ यू आर प्लानिंग टू राइट ए बुक, आई कैन गिव यू लॉट ऑफ गुड आइडियाज एंड टिप्स, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या बिल्कुल नहीं करना है। Thirdly, lot of my friends helped me with the proofreading or suggestions. I'm very thankful for them also. And I'm most thankful to Rashmi Bansal. आप में से बहुत से लोगों ने रश्मि बंसल का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने बुक पढ़ा हुआ है रश्मि बंसल? राइट, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, बेस्ट है। आई थिंक दैट बुक चेंज माई परस्पेक्टिव टूवर्ड्स द बिजनेस। बुक का नाम था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये शायद ना, मुझे लगता है हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमने हर 4-5 साल के बाद एक बार यही बुक वापस पढ़ना चाहिए। और रश्मि बंसल मैडम ने इसके लिए गाइडेंस किया था, एंड शी आल्सो हैज बीन वेरी काइंड इनफ टू राइट ए फॉरवर्ड फॉर दिस।
And with that, I would like to end my speech with thanking all of you once again personally. Vote of thanks होगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको थैंक यू बोल दूं. मैंने छोटा सा या जैसा भी इनविटेशन दिया है, you accepted this period. Thank you very much. Thank you for listening.